ओके जी, सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट सर सैयद अहमद खान, तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, once the war of independence ended, so basically the conditions of the Muslims were turning worst. No one liked them, and the British started blaming the Muslims to be the reason for the war. ये ब्रिटिश का कहना था कि भाई बेसिकली द मुस्लिम्स आर अ रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर. They were being badly treated, they were being tortured, and a lot of stuff is there which was being done to them. All of this, and the Muslims were in a real bad condition. Many of the Muslims were killed as well. हालांकि in reality Muslims are not the reason responsible for the war, but they are being punished. किया जा रहा है जबरदस्ती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं. At that point of time, Sir Syed Ahmad Khan was the one who came up, and the idea was to protect the rights of the Muslims, help the Muslims establish themselves in India, to enable the Muslims to fight for their rights and interests. And the idea was basically to establish the Muslims and to remove the misunderstanding that was there between the British and the Muslims, to unite the British and the Muslims, to improve the relations between the British and the Muslims. That were some of the primary objectives of Sir Syed Ahmad Khan. So we can say that he was a reformer. We can say that he has played an important role in the struggle movement for the Muslims. He was a religious supporter as well, a revolutionary agent, you can say, who brought various changes to the lives of the Muslims. So once we talk about Sir Syed Ahmad Khan, how are we going to remember it? So basically, we are first of all going to understand the brief background of Sir Syed Ahmad Khan, and then we are going to talk about his services for the people, and in this way, we are going to learn it. So if we talk about Sir Syed Ahmad Khan, so he got his primary education from his home, that is from his maternal grandfather. अच्छा, उस जमाने में ये होता था कि एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे. जो भी एजुकेशन होती थी आप घर में ही हासिल किया करते थे. वट एवर द एजुकेशन वॉज, बाहर जाने की या कुछ करने की उसके लिए ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी. So which included the study of Holy Quran, Arabic and Persian literature. ये घर पे ही सीख लिया. फिर then he went to a teacher and he learned about history and mathematics. And also he was learning about medicine, but he didn't complete his course of medicine. Achha, then he started writing. Writing means he started writing various books and other stuff. So he is one of the important writers when we talk about the books and pamphlets and magazines and other stuff. अच्छा, सर सैयद के बारे में अगर बात की जाए तो ही ज्वाइंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. ये ईस्ट इंडिया कंपनी वही है जिसका जिक्र हमने चैप्टर 2 में किया है. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ रिकॉर्ड कीपर ही वाज देयर, and then later he was promoted as the chief assistant official or the chief judge, and he served as a chief judge at the court in Bijnor. Acha, so this is something about Sir Syed Ahmad Khan, a brief introduction if you see. Now if we talk about Sir Syed Ahmad Khan, so basically his services are of various types. First of all, he has tried improving relations with the British, जो कि पहली सर्विस है सर सैयद अहमद खान की. दूसरी इंपॉर्टेंट सर्विस जो सर सैयद अहमद खान की है वो है एजुकेशनल सर्विसेज. देन वी हैव द पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, which includes the two nation theory and Aligarh movement and other stuff. तो सर सैयद पे जो क्वेश्चन बनता है इन द एग्जामिनेशन, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर 14 मार्क्स, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न ऑल द बेसिकली सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान. तो उस पर एक पूरा क्वेश्चन आपके पास डेवलप हो जाएगा. First of all, we are going to refer to the educational services of Sir Syed Ahmad Khan. So the idea of Sir Syed Ahmad Khan was that the Muslims should be educated. Sir Syed का ये कहना था कि भाई if the Muslims are going to be educated, then only they can be nearer to the British, because he said कि learning the English language was important for the Muslims. अच्छा, जो मुसलमान थे, they stopped सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स, और उनका ये कहना था कि भाई बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम स्कूल भेजते हैं वहां पर जो है वो बेसिकली दे आर नॉट बीइंग टॉट द राइट थिंग, और दोज आर द स्कूल्स ऑफ द ब्रिटिश.
सो हमारे बच्चे तो पता नहीं क्या सीख जाएंगे, दे आर गोइंग टू लर्न क्रिस्टियनिटी एंड अदर स्टफ, एंड वी आर द मुस्लिम्स एंड दीस ब्रिटिश आर द अनबिलीवर्स, व्हाई वी शुड बी सेंडिंग आवर चिल्ड्रन टू दोस देयर स्कूल्स। सर सईद ने समझाया कि देखो भाई, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, यू नीड टू बी एजुकेटेड। अब वो मानने को तैयार नहीं है द मुस्लिम्स। सर सैयद कन्विंस्ड द मुस्लिम्स टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमारी लैंग्वेज तो पर्शियन है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द अनबिलीवर्स, हम क्यों याद करें। ले भाई ये किया नहीं मुसीबत है। तो फाइनली व्हाट सर सैयद डिड कि सर सैयद ने कहा ठीक है भाई, तुम ब्रिटिश के स्कूल्स में नहीं भेजते बच्चों को, आई एम गोइंग टू ओपन अ स्कूल, ठीक है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड योर चिल्ड्रन टू दैट स्कूल्स। सो बेसिकली ही ओपनड अ स्कूल इन मुरादाबाद इन द ईयर 1858। द पर्पस वाज कि भाई सो दैट द मुस्लिम्स could get educated, क्योंकि सर सैयद ने कहा देखो भाई, विदाउट एजुकेशन यू विल नॉट बी गेटिंग जॉब्स इन द गवर्नमेंट, वंस यू आर नॉट गोइंग टू स्टेप फॉरवर्ड इन द गवर्नमेंट यू विल नॉट बी एबल टू फाइट फॉर योर राइट्स। अगर अपने राइट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना है, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आप इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल हासिल करें। सो बेसिकली ही द पर्पस व्हाट ही डिड वाज कि ही ओपनड अ स्कूल इन मुरादाबाद इन द ईयर 1858। अच्छा, देन in the year 1863 he established a scientific society. And what was that scientific society? The purpose of that scientific society was to translate the English books into Persian language, because all the books of knowledge, जितनी भी knowledge की books थी, were written in English by the British, क्योंकि ब्रिटिश तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हुआ करती थी, तो जितनी भी बुक्स थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी। अब ये था कि ब्रिटिश ने जो है वो बेसिकली उन बुक्स को लिखा था। सर सैयद गॉट ऑल दोज बुक्स एंड ही गॉट दोज बुक्स टू बी कन्वर्टेड इनटू Persian language, so that the people can read it and the people can understand it, people can get education, people can get the knowledge and they can step ahead. He opened a school in the year 1864 which was called as Victoria School, गाजीपुर में खुला है, और साइंटिफिक सोसाइटी भी गाजीपुर में ही स्टैब्लिश की थी 1863 में। Then there are other institutes such as the Aligarh Institute, which was opened. The purpose was to again spread over education. Then Sir Syed Ahmad Khan went to England. When he went to England, so he got to know about the education system of the British. He got impressed out of that education system, that the education system was quite convincing and was an easy way for the learners to learn the things. He came back to India and there he opened a school on the same uh, curriculum or the same style as that schools were there in England, and that school was called as Mohammedan Anglo Oriental School. ये MAO जो है इसकी full form है Mohammedan Anglo Oriental School, which was opened in 1875 and later it was made a college, and nowadays it is a university, Aligarh Muslim University. It was made a university in 1920. Also, he arranged various conferences wherein he used to invite various lecturers and motivators who used to come and who used to share their knowledge with the people so that the people can be educated. तो एजुकेशनल सर्विसेज की अगर सर सैयद अहमद खान की बात की जाए, so there are a lot of educational services that he had rendered for the people. Also, he wrote various pamphlets. For example, जिसमें असार सनादीद, essay on the life of the Prophet, Indian Muslims, and many other essays are there that Sir Syed Ahmad Khan wrote, and the purpose was to make the people aware about the things that are going on. कुछ current situation पर भी थे, कुछ different थे. So many of the things were there that were being introduced that time. और वो जो है हम उसको basically educational services कहते हैं, ठीक है। अच्छा, other than that, we have the services of Sir Syed Ahmad Khan, which is called as the improvement of relations with the British. अब हुआ ये कि बेसिकली मैंने कहा कि आफ्टर द वॉर द मुस्लिम्स वर बीइंग ब्लेम्ड फॉर द वॉर, मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि दे आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। सर सैयद अहमद खान ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश की है, एंड फॉर दिस ही हैज डन सम पॉलिटिकल एफर्ट्स।
One of his political effort is basically the Aligarh movement. The purpose of Aligarh movement was not only uh, improvement of relations but also to provide the Muslims with modern education. तो सबसे पहले तो सर सैयद ने कोशिश की कि भाई रिलेशंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश शुड बी इम्प्रूव्ड। उसके लिए सर सैयद ने क्या किया कि ही स्टार्टेड राइटिंग वेरियस बुक्स एंड पैम्फलेट्स। और जिसका पर्पस क्या था, जिसका पर्पस था कि बेसिकली the British should be convinced that Muslims are not the reason responsible for the war. Sir Sayyid wrote a pamphlet. Pamphlet basically कहते हैं a small kind of a magazine, you can say, which was the name was Causes of the Indian Revolt. In this, he pointed out the main reasons for the war, and wherein he said that basically there was no proper government. Muslims were forced into Christianity. No Indian army was there proper. तो इसकी वजह से वॉर हुआ। Muslims are not the reason responsible for the war. This pamphlet was circulated, was spread over for free amongst the British officials, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट भी भेजा गया। तो जब रॉयल फैमिली में ये कॉपीज रिसीव हुई, so some British officials got angered by what Sir Syed Ahmad Khan wrote. However, others, they accepted कि भाई it was truth in the words, and they said कि yes, what Sir Syed Ahmad Khan is saying is basically correct. Muslims are not the reason responsible for the war. In the year 1860, he wrote basically another pamphlet, which is The Loyal Mohammedans of India. He said that the Muslims are not disloyal. The Muslims have ever been loyal, and Muslims are the friends of the British. In The Loyal Mohammedans of India, basically he highlighted कि लोग दुनिया में लड़ते हैं ऑन द इशू ऑफ रिलीजन। सर सैयद ने कहा कि भाई मुसलमानों और ब्रिटिश के बीच में तो रिलीजन का कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज the British are of Christianity and Muslims are believing in Islam. Christianity and Islam are some more or less having some of common beliefs, such as the Muslims, they believe in the Bible and they believe in Hazrat Isa. The Christians also believe in it. So he highlighted कि भाई तो similarities हैं, हमें क्या जरूरत है आपके खिलाफ लड़ने की। अच्छा, फिर क्या था कि the Muslims they used to call a word nadarat for the British. तो अब इसको भी क्लैरिफाई करना था। तो ब्रिटिश थॉट इट वाज समथिंग इंसल्ट, लेकिन सर सैयद ने पॉइंट आउट किया कि बेसिकली द वर्ड नदारत केम फ्रॉम नासिर, विच मींस हेल्पर। सो इट रिफ्लेक्टेड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द मुस्लिम्स बिफोर द ब्रिटिश। ये भी एक कन्विंसिंग एटीट्यूड था सर सैयद अहमद खान का, भी किसी भी तरीके से जो है वो कन्विंस किया जाए ब्रिटिश को कि दे आर द मुस्लिम्स आर नॉट अ रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार। मुसलमानों की जो है वो किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है। इस चीज को जो है वो साबित करने के लिए सर सैयद स्टार्टेड ओवर विद द अलीगढ़ मूवमेंट, और इसमें वेरियस बुक्स और पैम्पलेट्स को लिखा गया। इसके अलावा ये कि जो मुसलमानों के लिए एजुकेशनल सर्विसेज रेंडर की हैं सर सैयद अहमद खान ने, ऑल दोज सर्विसेज वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस अलीगढ़ मूवमेंट। Another important thing about Sir Syed Ahmad Khan is his two nation theory. अब हुआ क्या है कि basically in the year 1867 the Hindus demanded कि हिंदी should be made the official language in place of Urdu, और इस पर जो है वो एक झगड़ा शुरू हो गया, एक एजिटेशन वाला मामला शुरू हो गया कि भाई अब क्या करना चाहिए। So the Hindus were actually against Urdu and they said कि भाई Urdu should be completely replaced and the language should be Hindi should be the official language. At that point of time, Sir Syed Ahmad Khan realized that Hindus and Muslims were having quite a lot of differences, and those differences were so much that they could not be brought closer to each other. इस बात को जो है वो देखा गया है कि भाई Hindus and Muslims are fighting on such grounds कि they cannot be brought closer to each other. So at that point of time, he introduced the two nation theory. What was the two nation theory? The two nation theory was that Muslims and Hindus should be called as two separate nations because Muslims and Hindus are totally separate people. There are the religious differences,
because the Hindus they follow Hinduism, the Muslims they follow Islam. There are the language differences. The Hindus are having the language Hindi, the Muslims are having the language Urdu. There are the social differences. For example, the differences of culture and tradition. The Muslims they celebrate Eid, Muharram, and whatever Ramadan, etc. However, on the other hand, the Hindus they celebrate different events. Similarly, cow is something holy for the Hindus. Cow is something to be slaughtered for the Muslims. So a lot of differences were there. Moreover, the political objectives. Hindus का political objective था to defeat the Muslims. मुसलमानों का political objective था to fight for their rights. So हर चीज different थी. तो सर सैयद अहमद खान ही highlighted कि भाई इनके दरमियान जो है वो all the things are different. However, what the British are considering, British का ये सोचना है कि ये दोनों एक ही नेशंस हैं, जबकि ऐसा नहीं है. ये दोनों एक नेशंस नहीं है, ये दोनों अलग अलग नेशंस हैं. यानी हिंदूज आर सेपरेट, मुस्लिम्स आर सेपरेट, इनको एक नहीं कहना चाहिए. अच्छा, टू नेशन थ्योरी इज नॉट अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड. कई लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, टू नेशन थ्योरी वाज अ थ्योरी दैट बेसिकली द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस एंड दे कैन नॉट लिव टुगेदर. अरे भाई, लिव टुगेदर की बात कहां से आ गई? लिव टुगेदर की तो बात ही नहीं हुई अभी तक. अब तक सिर्फ बात हुई है कि इनके नाम अलग अलग हैं, इनके काम अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग समझा जाए. अगर राइट्स देने की बात आती है तो मुस्लिम्स को सेपरेट राइट्स दिए जाएंगे, हिंदूज को सेपरेट राइट्स दिए जाएंगे. ये बात की जा रही है. हिंदूज को सेपरेट राइट्स देने का मतलब है कि बेसिकली एक टेंपल, अगर इफ अ टेंपल इज बीइंग मेड फॉर द हिंदूज ऑन द सेम ग्राउंड, ऑन द सेम एरिया, अ मॉस्क शुड बी बिल्ट फॉर द मुस्लिम्स एज वेल. ये हैं सेपरेट राइट्स. कि एक नेशन ना समझकर बैठ जाए. नेशन अलग अलग है, सेपरेट नेशन है, सेपरेट नेशन समझे, सेपरेट नेशन की तरह स्टैब्लिश करें. ये एक बेसिक बात थी विच वॉज सेड. एंड ये जो इशू स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, जो हिंदी और उर्दू वाला, दैट इज कॉल्ड एज दी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी. इस हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी की वजह से बेसिकली अदर फैक्टर्स एंड अदर इश्यूज वर देयर विच गॉट इनिशिएटेड, और जिसकी वजह से जो है a lot of problems and a lot of issues they actually started. ठीक है, तो ये आपके पास जो है दैट इज द टू नेशन थ्योरी. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान. अलीगढ़ मूवमेंट तो है ही है, इसके अलावा ये जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ऑफ सर सैयद अहमद खान. अच्छा, इसके अलावा ये है कि इफ वी टॉक अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट, तो पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, टू एजुकेट द मुस्लिम्स, टू प्रोवाइड जॉब्स टू द मुस्लिम्स, टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स. ये कुछ बेसिक बात है अबाउट द अलीगढ़ मूवमेंट. इफ अ क्वेश्चन कम्स फॉर 4 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आस्किंग यू अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट, तो ये एक ब्रीफ से 4 पॉइंट्स हैं जिनको लिख दिया जाए तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ. इसके अलावा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द हिंदूज हैड एस्टैब्लिश्ड अ पार्टी फॉर देमसेल्व्स which was called as the Indian National Congress. It was a party which was set up in the year 1885, and although the party claimed कि इंडिया में जितने रहने वाले हैं ये तमाम लोगों को represent करेगी, but in reality that turned out to be a party कि जिसने basically it started representing the Hindus only and it did not represent the Muslims. At that point of time, Sir Syed Ahmad Khan advised the Muslims to stay away from Congress, कि भाई कांग्रेस से दूर रहें. कांग्रेस जो है वो हिंदू ओरिएंटेड पार्टी है, हिंदूज के लिए खोली गई है, हिंदूज को सपोर्ट दे रही है, मुसलमानों को सपोर्ट नहीं देगी, तो आप उसमें सपोर्ट क्लेम ना करें. दैट वाज द एडवाइस ऑफ सर सैयद अहमद खान. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सर सैयद अहमद खान. तो अब क्या है कि भाई अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूं तो दोबारा इस पर बता देता हूं कि यू नीड टू रिमेंबर एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, पॉलिटिकल सर्विसेज जिसमें अलीगढ़ मूवमेंट है. ठीक है, इसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर द एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान. दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. जो भी उनकी राइटिंग्स वगैरह एंड अदर स्टफ इज देयर, दैट इज इंपॉर्टेंट. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर बना लेते हैं सर सैयद अहमद खान का कि भाई द पर्पस ऑफ सर सैयद अहमद खान, जो मैंने बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में कहा कि द पर्पस ऑफ सर सैयद अहमद खान वाज टू स्टैंड अप फॉर द प्रॉब्लम्स एंड टू इंप्रूव द रिलेशंस. तो एक ब्रीफ इंट्रो बन जाता है, तो वो आपके पास थिंग्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड. ठीक है,
इसके अलावा ये कि भाई सर सैयद अहमद खान ऑल्सो सजेस्टेड कि बेसिकली द मुस्लिम्स शुड बी एजुकेटेड, और सिर्फ एजुकेट नहीं होंगे बल्कि देर वॉज एन इंस्टीट्यूशन विच वॉज कॉल्ड एज दी सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, सॉरी हाँ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, एक्चुअली इंडियन सिविल सर्विसेज उसको कहा जाता था। देर वॉज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS। उसके एग्जाम्स होते थे और जो कोई उस एग्जाम को क्वालिफाई करता था उसको जॉब मिलती थी गवर्नमेंट में। तो सर सैयद एडवाइज्ड द मुस्लिम्स दैट दे शुड बी क्वालिफाइंग फॉर द ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करें, ताकि उनको जो है वो इंडियंस जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और जो है वो थिंग्स कुड बी इम्प्रूव्ड। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको याद करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ। So if we basically refer to the question, so पहला question was the development of a Western education system the greatest achievement of Sir Syed Ahmad Khan? Explain your answer। अगर इसको रेफर करते हैं तो बेसिकली अब इसमें वो पूछ रहा है कि was the Western education system का जो उन्होंने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया था, क्या was it only the greatest achievement of Sir Syed Ahmad Khan? तो ऐसा नहीं है भाई। There are many other things as well which have been introduced by Sir Syed Ahmad Khan और जो कि सक्सेसफुल रही हैं। तो उसमें एक इंट्रोडक्शन बनेगा बेसिक, जो कि मैंने बताया है क्लास के स्टार्ट में और लिखवाया भी है। तो कि कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर द वॉर वर वर्स्ट, एंड उसमें आप बताएंगे कि the motive of Sir Syed Ahmed Khan was to improve the relations and therefore he introduced various reforms, and then जो भी सर्विसेज हैं सर सैयद अहमद खान की, जैसे पॉलिटिकल सर्विसेज हैं, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस विद द ब्रिटिश एंड टू नेशन थ्योरी है, उस उन सब के नाम लिख देंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। देन एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे तो देर इज गोइंग टू बी अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर ईच ऑफ द सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, एंड फाइनली देर इज गोइंग टू बी अ कंक्लूजन। इन द कंक्लूजन अब आपकी मर्जी है, आप कंक्लूड करने में किसी भी एक रीजन को सपोर्ट कर लें, सारे रीजंस को सपोर्ट कर लें, इट्स अप टू यू। यू कैन से कि भाई सर सैयद रेंडर्ड अ लॉट ऑफ सर्विसेज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया which includes the political educational services which help the Muslims of India in establishing themselves, or whatever it is, just जो भी चीज आप बेहतर समझते हैं उसको लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इट। एक और क्वेश्चन बेसिकली है कि व्हाई डिड सर सैयद रेंडर एजुकेशनल सर्विसेज फॉर द मुस्लिम्स? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स, और 7 मार्क्स में हम क्या करते हैं ये देखिएगा। व्हाई डिड सर सैयद रेंडर एजुकेशनल सर्विसेज फॉर द मुस्लिम्स? सो अगेन इंट्रोडक्शन, सर सैयद thought that the Muslims of India could not survive, therefore he tried to facilitate the Muslims of India by providing them with education. एक्सप्लेनेशन, सर सैयद सेट अप वेरियस स्कूल्स। अच्छा, ये आप यहाँ पर सर सैयद के सारे स्कूल्स के नाम, उनकी साइंटिफिक सोसाइटी वगैरह जो भी है वो स्टैब्लिश किया। पर्पस क्या था? पर्पस ये था टू मेक द मुस्लिम्स एजुकेटेड सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, सो दैट दे कैन गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट। अगर एजुकेटेड होंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर सकेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करेंगे तो रिलेशंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह आंसर हो जाएगा। ये एक मेजर क्वेश्चन है। इसके अलावा अनदर मेजर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है, विच इज व्हाई डिड सर सैयद ट्राई टू इम्प्रूव रिलेशंस विद द ब्रिटिश? इसका आंसर हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि भाई बेसिकली सर सैयद इंट्रोड्यूस्ड ट्राइड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद द ब्रिटिश बिकॉज British were having a bad image of the Muslims. Muslims were being blamed for the war. Muslims were tortured and punished. Muslims were not given their rights. Muslims were not given jobs. तो फिर आप लिखेंगे कि द नेम्स ऑफ द जर्नल्स एंड द पैम्पलेट्स दैट सर सैयद अहमद खान रोड, जैसे कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, और उनका क्या पर्पस था? पर्पस वाज टू लेट द ब्रिटिश नो, टू गेन सिंपैथी ऑफ द ब्रिटिश कि भाई बेसिकली वी आर नॉट द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, हमने नहीं किया है ये हमारा कसूर नहीं है, हमारी गलती नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड।